Good morning, students. Here we will see the use of since and for. So let's see, we use for and since to talk about an action which started in the past and continues in the present. Clear? Since और for का यूज़ हम लोग करते हैं उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो कि जिसका बिगनिंग जो है वो पास्ट में हुआ है एंड इट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. ओके, क्लियर? Next is we use for when we refer to a length of time. We use for when we refer to a length of time. Length means लंबाई, or you can say that for is used with duration of time. जहाँ पे समय की अवधि बताई जाए और पीरियड ऑफ टाइम यू कैन से, ओके, और लेंथ ऑफ टाइम दैट इज़ रिटन इन योर बुक. तो जहाँ पे समय का ड्यूरेशन बताया जाए, समय की अवधि बताई जाए, देयर वी यूज़ फॉर एग्जाम्पल, आई हैवेंट सीन सलमा फॉर 2 years. And second example is, I haven't been working in this office for a week now. I had spoken for 10 minutes when the audience interrupted me. So let's see first example at first. I haven't seen Salma for 2 years. Here मैंने सलमा को 2 सालों से नहीं देखा. What is the duration of time? समय की अवधि कितनी है? 2 साल. This is duration of time, length of time, period of time. So here we have used for. Next is, I have been working in this office for a week now. What is the duration of time? A week. एक हफ्ता. ओके, एक हफ्ता. दिस इज द पीरियड, लेंथ, और यू कैन से ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो हियर ऑल्सो वी हैव यूज्ड फॉर. नेक्स्ट इज, आई हैड स्पोकन फॉर 10 minutes व्हेन द ऑडियंस इंटरप्टेड मी. आई हैड स्पोकन फॉर 10 minutes. मैं 10 मिनट के लिए ही बोला था कि ऑडियंस ने मुझे बीच में टोका. देन व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम? कितने देर मैंने बोला था? 10 minutes. द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाज 10 minutes. द लेंथ ऑफ टाइम वाज 10 minutes, or you can say the period of time was 10 minutes. Here one thing will be एक पॉइंट बता दें that will be helpful for all of you, that for के बाद हमेशा न्यूमरल्स के यूज़ होते हैं, और न्यूमरल के बाद आइदर इट वहाँ पे हम लोग या फिर मिनट्स का यूज़ हम देख सकते हैं, मिनट, आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स. ओके, सो for is used for duration of time, length of time, period of time. And next is since. Since is used, we use since when we refer to a definite moment of time. Means you can say in simple language that since is used for fixed point of time. Fixed point of time, और वहाँ पे इंसिडेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवेंट सीन सलमा सिंस वी लेफ्ट स्कूल. ओके, सिंस वी लेफ्ट स्कूल, देन दिस इज़ अ फिक्स इंसिडेंट. ठीक है, दिस इज़ अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम. एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम ये है कि सलमा ने जब स्कूल छोड़ा उसके बाद हमने उसे नहीं देखा. दिस इज़ अ फिक्स इंसिडेंट, fixed moment of time you can say. So that's why here we have used since. Next is, I have been waiting for the bus since 9 o'clock this morning. हम बस का वेट कर रहे हैं 9 बजे से. इट इज़ अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम. 9 बजे से वेट कर रहे हैं. दिस इज़ फिक्स. दैट्स. अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते दैट हियर ऑल्सो न्यूमरल या नंबर है 9 है तो 4 लगाएंगे. नो, यहाँ पे इसलिए नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे 9 के बाद ना तो मिनट्स, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, ऐसा कुछ नहीं है. हियर इट इनफैक्ट इट इज़ शोइंग फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है. दैट्स वाई हियर न्यूमरल यानी नंबर होने के बावजूद वी विल यूज सिंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड अलॉट सिंस जनवरी. जनवरी, दिस इज ऑल्सो फिक्स मंथ. एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. जनवरी से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है. दिस इज़ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, definite moment of time you can say. That's why here also we will use since. So once again let me tell you in simple language that for is used for duration of time and since is used for fixed point of time. Now here also the same thing it is given. You can see use of since or for. We use since to talk about a point in the past, a specific point in time. For example, he has lived here since 1993. This is year जो कि हमारा fixed point of time show कर रहा है. Next is, they have been at the hotel since last week. This is also fixed point of time. Last week, पिछले हफ्ते से.
Next we use for to talk about a length of time, a period of time. Example is I have worked here for 8 years. Numeral 8. उसके बाद year है. Then here we have used for. Next is I haven't been on holiday for 6 months. Now here we will see some more examples for since and for. So since, we use since before टाइम. ओके, टाइम बताने के पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, नेम ऑफ डेज. ओके, वी हैव यूज्ड सिंस. नेक्स्ट इज मार्च, नेम ऑफ मंथ्स. मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ ईयर, 1978, जितने भी ईयर हैं उसके पहले भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट I left the job. Since I left the job. फिक्स इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट के बारे में जिक्र करना हो, बताना हो, देयर ऑल्सो वी यूज since. नेक्स्ट इज द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी. ओके, हियर ऑल्सो वी विल यूज since. नेक्स्ट इज for 2 minutes. मिनट के पहले न्यूमरल यू कैन सी. for 10 hours, आवर्स के पहले. for 5 days, before days. for 7 months, for 20 years, for 3 centuries. One thing is common here. I have told you that see here numbers are given 2, 10, 5, 7, 23. okay, और यहाँ पे टाइम नहीं बताया जा रहा. like here 8 o'clock, यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, but here टाइम यहाँ पे नहीं बताया जा रहा. here it is about minutes, hours, days, months, years, centuries. so here we have used for because यहाँ पे समय के ड्यूरेशन की बात हो रही है. फिक्स टाइम की बात यहाँ हो रही है 8 o'clock, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे. बट हियर इट इज़ यहाँ पे बात हो रही है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की. दैट्स वाई हियर वी विल यूज़ फॉर.